All right, class. Today we are going to start another topic, which is about the switching in network. The switching in network refers to the method which is used to forward data from a source to destination across a network. So switching have different types, including the circuit switching, packet switching, message switching. So we talk about this today. That how do switches works in the networks and what are the methods used to forward the data from the source to the destination across the network. So let's start it. So here is the switch network. So switch network having the multiple switches here and multiple nodes here. So this is the dedicated communication path which is established between the endpoints for the duration of sessions. Like the telephone, for example, like our traditional telephone lines, which works like the switches or switch network. So in the switch network, we have circuit switching, packet switching, and message switching network. So packet switching is further categorized into the datagram networks and the virtual circuit networks. So first of all, let's talk about the circuit switching. Yeah, circuit switch network. A circuit switch network consists of set of switches connected by the physical links. A connection between two stations is a dedicated path made up of one or more links. So, however, each connection uses only one dedicated channel on each link. So, each link is normally divided into the n channels by using the frequency division multiplexing or the time division multiplexing. And FTM and TDM, we will see it later. So, we will discuss here three phases and efficiency and delay and circuit switch network. Circuit switch technology in the telephone networks. So circuit switch network is the made up of set of switches connected by the physical links and in which each link is divided into the n channels. So सर्किट स्विच नेटवर्क में हमारे पास सेट ऑफ स्विचेस हैं. हर एक स्विच जो है वो फिजिकल लिंक के साथ कनेक्टेड है और हर एक स्विच जो है वो आगे मल्टीपल चैनल्स के अंदर डिवाइडेड है. Just like this is the trivial circuit switch network, and we have the different paths and different channels here. So circuit switching, the resources need to be reserved during the setup phase. The resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the tear down phase. Until and unless हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होता तब तक हमारे पास सर्किट स्विचिंग में जो रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व्ड रहते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं. So a trivial example is, for example, let us use a circuit switch network to connect the 8 telephone lines in a small area. So in the starting of the lecture, I have told you कि सर्किट स्विचिंग जो है वो टेलीफोन नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है. अगर हमारे पास एक सर्किट स्विच नेटवर्क है उसमें हमने 8 टेलीफोन लाइंस जो हैं वो एक स्मॉल एरिया को डेडिकेट करनी है. So communication is through the 4 kilohertz voice channels. So we assume that each line uses the frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing is basically our technique जिसमें हम अपनी frequency को further divide करते हैं. So frequency division multiplexing जो है उसमें हम transmit करते हैं multiple signals को simultaneously over a single communication channel by assigning each signal a different frequency with the available bandwidth. अब frequency जो division multiplexing है उसमें हम basically करते क्या है कि हम multiple signals को simultaneously एक single communication channel के ऊपर जो है वो assign करते हैं ताकि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें पैरेलल ट्रांसमिशन भी होती है और बैंडविड्थ को भी हम डिवाइड करते हैं. और फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ज़्यादातर हम जैसे केबल टीवी
मैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घरों में केबल टीवी लगता है जिसमें डिफरेंट चैनल्स होते हैं और उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। साइमल्टेनियसली सेम केबल पे वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को डिवाइड करता है। हमारे घर में केबल टीवी की एक ही केबल आती है और उस केबल के ऊपर बहुत सारे चैनल्स की फ्रिक्वेंसीज को हम डिवाइड कर रहे होते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ द एफडीएम। सेम एफडीएम का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन लाइंस में भी यूज होता है। So we assume that each link uses the FDM to connect the maximum of the two voice channels. So bandwidth of each link is done 8 kilohertz. और हम इस सिचुएशन को आगे फिगर में शो करते हैं। टेलीफोन 1 is connected to the telephone 7, 2 is connected to the 5, 3 is connected to the 8, 4 is connected to the 7. So of course the situation may change when new connections are made. So the switch controls the connection. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टेलीफोन लाइंस हैं और इनकी स्पीड दी हुई है 4 किलोहर्ट्ज तक। जैसे हमारे पास घरों में नेटवर्क की स्पीड होती है, सेम इस तरह से टेलीफोन लाइंस की भी एक फ्रिक्वेंसी है, उनकी भी एक स्पीड होती है। सो सर्किट स्विच नेटवर्क में हमारे पास 0 से लेके 8 किलोहर्ट्ज तक हम आगे फर्दर को फ्रिक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैनल आ रहा है वो फर्दर आगे डिवाइड हो रहा है 7 और 8 को, जो दूसरा है वो 5 और 6 को डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है जो कि 8 किलोहर्ट्ज अप टू दी 8 किलोहर्ट्ज है वो सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें हम ये कहते हैं कि सर्किट स्विच नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन द टू रिमोट ऑफिसेज ऑफ द प्राइवेट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑफिस है जिसमें हमने एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें हमने एक सर्किट स्विच नेटवर्क जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। ऑफिसेस क्या करेंगे, ऑफिसेस आर कनेक्टेड यूजिंग द T1 लाइन लीज्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। सो देयर आर 4x8 4 इनपुट्स एंड 8 आउटपुट्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक सिंगल इनपुट को आगे फर्दर आउटपुट्स में डिवाइड कर रहे हैं। So what we have to do, so there are the 4x8, total 4 inputs and 8 output switches in this network. So for each switch, 4 output ports are folded into the input ports to allow communication between the computers in the same office. So 4 other output ports allow communication between the two offices. ठीक है? So इसके communication की जो division है वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास 4x8 switches हैं और उसको हम आगे फर्दर सर्किट स्विच नेटवर्क में एक ऑफिस की T1 लाइन को जिसकी स्पीड जो है 1.4 मेगाबिट पर सेकंड है, इस स्विच नेटवर्क के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सो हमारा ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट स्विच नेटवर्क है वो हमारे प्राइवेट ऑफिस के नेटवर्क्स में जो लिंक है उसको शेयर करने के लिए भी यूज होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिले इन द सर्किट स्विच नेटवर्क। सो डिले क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। सो व्हाट इज द डिले। अब हम डिले को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। नेटवर्किंग में डिले रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। So there are the several types of delays that affect the overall network performance. उसमें एक डिले की हम बात करते हैं कि प्रोपगेशन डिले आ जाता है, जो कि सिग्नल को ट्रैवल करने में जो प्रॉब्लम आता है, जो केबल्स के थ्रू ट्रैवल हो जाता है। दूसरा आ जाता है ट्रांसमिशन का डिले। ट्रांसमिशन डिले जो है कितना टाइम रिक्वायर होता है एक पैकेट को पहुंचने में, तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रोसेसिंग में हर टाइप के डिलेस में आ जाती है। तो ये हमारे पास डिले है सर्किट स्विच नेटवर्क में कि क्या हमारे पास कितना टाइम जो है वो टोटल इट विल टेक फॉर द डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे डिसकनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क में कनेक्शन जो है वो मेडअप भी हो रहा है और कनेक्शन लॉस भी हो रहा है। जब लॉस होगा इसका मतलब है यहाँ पे ये डिसकनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये टोटल डिले आ गया। So switching at the physical layer is the traditional telephone network uses the circuit switch approach. So हमारे पास फिर डेटाग्राम नेटवर्क्स आ जाते हैं। डेटाग्राम नेटवर्क्स में हमारे पास क्या होता है कि डेटा कम्युनिकेशन में we need to send messages from the one end system to another. So if the message is going to pass through a packet switch network, it needs to be divided to the packets of fixed or the variable size. So size of the packet is determined
by the network and the governing protocol. So routing table में हमारे पास efficiency है, delay है, datagram networks हैं in the internet. So in packet switch network, so there is no resource reservations. Resources are allocated on demand. So datagram network में हमारे पास, for example, these are the PCs which are going to connect. For example, we're going to transfer the packets over the network, which is the datagram network. So ये हमारे पास network पैकेट्स जो हैं इस ओवरऑल डेटाग्राम नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करेंगे और आफ्टर द ट्रैवल दे विल कम्युनिकेट फ्रॉम द एंड टू एंड डिवाइसेस. ओके, सो डेटाग्राम नेटवर्क हमारे पास जो है वो पैकेट स्विच नेटवर्क की टाइप है जिसमें हर पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है. सो डेटाग्राम बेसिकली क्या है? डेटाग्राम बेसिकली एक पैकेट को ही हम कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ट्रीट होता है, जिसमें कोई प्री डिटर्मिन्ड पाथ या कोई फिक्स्ड कनेक्शन नहीं होता बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. वो खुद ही डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ जो है वो किस तरह से उसने डिटर्मिन करना है. एंड आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पाथ द डेटाग्राम विच इज बेसिकली द पैकेट वो ट्रांसफर होता है. तो डेटाग्राम हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन लेस भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है, और इसकी सबसे अच्छी एफर्ट जो ये होती है कि ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है. इसमें कोई हम कहते हैं कि डुप्लीकेशन या प्रोटेक्शन तो नहीं होती, लेकिन ये कोशिश करता है कि अपने राउट्स पे जो इसके अवेलेबल राउट्स होते हैं उसके थ्रू वो अपनी पैकेट को सेंड करे, पैकेट या डेटाग्राम. सो हमारे पास ये डेस्टिनेशन एड्रेस है और ये आउटपुट पोर्ट्स हैं और इसके ऊपर डेटाग्राम पैकेट्स जो हैं वो सेंड होते हैं. सो स्विच इन द डेटाग्राम नेटवर्क यूज अ राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल कंप्लीट एक हम कहते हैं कि कंप्लीट एक हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है जिसमें ये होता है कि हमारे पास टोटल कितने पैकेट्स आए, कितने पैकेट सेंड हुए, कितने पैकेट लॉस हुए. तो एक कंप्लीट राउटिंग टेबल जनरेट हो जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस. So destination address is the header of a packet in a datagram network which remains the same during the entire journey of the packet. उसका जो destination address है वो same रहेगा definitely until and unless जो हमारा datagram जो है, datagram जिसको हम packet कह रहे हैं, वो जब तक अपने destination पे नहीं पहुंच जाता उसका address जो है वो same रहेगा. Like this is the transmission time, this is the waiting time showing from the point A to point B. ये टोटल हमारे पास कौन सा राउट होगा, उसमें टाइम कितना लगेगा, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. सो स्विचिंग इन द इंटरनेट इज डन बाय यूजिंग द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर. सो पैकेट स्विचिंग डेफिनेटली हमने पैकेट्स की बात की थी कि वो नेटवर्क लेयर के ऊपर होते हैं. सो दिस अप्रोच इज डन एट द पैकेट स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर. Okay, I'm going to end here. Next, I will resume later because आवाज नहीं आ रही है.